नमस्कार, इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। चलिए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। पंजाब कैबिनेट की आज हुई बैठक दौरान अहम फैसले लिते गए ने। मीटिंग की जानकारी देंदे हुए कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और अमन अरोड़ा ने दस्सिया कि सूबे च मौसम कारण बहुत सारिया खराब फसलां हो चुकियां ने अते जिन्हां किसानां नूं नुकसान होया है उन्हां दी मदद करन दी भी उम्मीद जताई है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कैबिनेट वालों किसानों नूं होए नुकसान का मुआवजा देण दी प्रवानगी दी गई है अते 100% नुकसानी फसल का प्रति एकड़ 15,000 मुआवजा दिता जाएगा। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟੂਗਾ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਸਭ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 15,000 ਪਰ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ 100% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 33 ਤੋਂ 75 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 6800 ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਰਦੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ 5200 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਢੱਠ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਢੱਠ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1,20,000 ਰੁਪਈਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਊਗੀ। इस दे नाल कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कनक ते झोना की बदल वजों बासमती की खेती नूं तरजीह दी जाएगी। नरमे की फसल के रकबे नूं वधाया जाएगा ते नरमे के बीजां ते पंजाब सरकार वालों 33% की सबसिडी भी दी जाएगी। ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਰਕਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 33% ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। आप दे कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने कहा कि कुदरती करोपी करके किसानों की कणक ते होर फसलों और सब्जियां दे होए नुकसान का मुआवजा मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों किए फैसले मुताबक पंजाब सरकार वालों 15 अप्रैल तक दे दिता जाएगा। किसानों को अपील है कि वह अपनी फसलों की गिरदावरी खेतीबाड़ी ते माल महकमे नाल मिल के तुरंत करवा लें। सत श्री अकाल जी। जिस तरह के पता ही है कि कुदरती जी गड़ेमारी हुई है ਜਾਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਕਣਕ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਫਾੜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਚ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 279 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ लगाओ। टोटल तो 279 पेशेंट्स जो पॉजिटिव हैं पंजाब में पूरे में, और तकरीबन 59 टेस्ट जो पर मिलियन किए जा रहे हैं। और मैंने बोल दिया कि आप टेस्टिंग थोड़ी और बढ़ा दो। मतलब कोई भी पैनिक की बात नहीं है। अभी इसका जो पेंडेमिक हुआ है इसकी वैक्सीनेशन भी हो चुकी है। फ्रंट लाइन वर्कर्स में तो ऑलमोस्ट 100% है, और जो बाकी जितने भी मतलब जो लोग कराना चाहते थे सबकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, और बहुत सारे लोगों को कोविड हो भी चुका है। तो अभी ये एंडेमिक हो गया है, चाहे ये हो H3N2 हो, मतलब जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस हैं ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ये एंडेमिक रहेगा। और कहीं कहीं कुछ एरिया में जहाँ पे पहले नहीं हुआ लोगों को, तो जहाँ पे लोगों की इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई है पूरी तरह से, तो वहाँ पे छोटे छोटे कई बार फ्लेयर अप हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। कोई भी पेशेंट ICU में नहीं है और कोई भी पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर नहीं है। अभी जो 1-2 डेथ हुई भी हैं वो जो इम्यून कम्प्रोमाइज्ड, एक कैंसर का पेशेंट था, एक डायबिटीज़ का पेशेंट था। तो जो इम्यून कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है उनको ज़रूर मतलब बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की, मतलब दोनों जो भी वायरल इन्फेक्शन है या किसी भी इन्फेक्शन से, तो उनको बिल्कुल वो कहीं भी भीड़ भड़के वाले एरिया में ना जाएं, जहाँ पे शोर शराबा हो, और वहाँ से बच के रहें। और मास्क पहने जब भी बाहर जाना है, और मतलब उनको स्पेशल प्रिकॉशन, और जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल में रखें। अपनी दवाई और जो उनकी खुराक है वो नियम से लें। वैक्सीनेशन भी करवाएं, तो उनके लिए स्पेशल एडवाइस है। बाकी जो कॉमन मैन है, अगर किसी को खांसी जुकाम है तो वो 2 तरीके से कोऑपरेट कर सकते हैं। एक तो अपना टेस्ट कराएं, और अपना वो जरूर फेस मास्क पहने, और फेस मास्क पहनेंगे तो उससे आगे स्प्रेड नहीं होगा, उनके नियर एंड डियर वंस को भी नहीं होगा और भी किसी को नहीं होगा। तो ये अगर छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो फिर हमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सावधान होने की ज़रूरत है। अगली मुख्य खबर की ओर बढ़ेंगे। खालिस्तान समर्थक भगोड़े अमृतपाल सिंह के मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने उसके साथ मौके से फरार हुए सहयोगी जोगा सिंह को गिरफ्तार किया है। उसे लुधियाना के पास साहनेवाल से पकड़ा गया है। अमृतपाल अपने सहयोगी पपलप्रीत और ड्राइवर जोगा के साथ होशियारपुर से फरार हुआ था। पंजाब पुलिस जोगा सिंह का मोबाइल फ़ोन ट्रैक कर रही थी और उसी के आधार पर अमृतपाल की लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। वहीं इसी बीच उसका एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 28 मार्च को जोगा सिंह एक जानकार की दुकान पर मोबाइल खरीदने आया था। उसके साथ 2-3 और लोग भी थे। जोगा सिंह नांदेड़ साहिब की गाड़ी में सवार होकर आया था। अगली मुख्य खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन खुल चुके हैं। पहले हफ्ते में ही 1 लाख से ज़्यादा पर्यटक यहां की खूबसूरती को निहारने के लिए पहुंचे हैं। इस बार इस विश्व प्रसिद्ध गार्डन में 68 किस्मों के 16 लाख से ज़्यादा ट्यूलिप लगाए गए हैं। वहीं प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक यहां पहुंचेंगे। देखिए श्रीनगर से हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी की ये खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद है एशिया के सबसे दूसरे बड़े ट्यूलिप गार्डन में, और ये ट्यूलिप गार्डन आप देख सकते हैं शहर श्रीनगर में मौजूद है, और कई कनाल्स तक ये ट्यूलिप गार्डन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहाँ पर करीबन इस साल 16 लाख से ज़्यादा ट्यूलिप्स लगाए गए हैं 68 वैरायटीज़ के। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इन पहाड़ियों के दामन के तले ये खूबसूरत अद्भुत ट्यूलिप गार्डन जो है हर साल करीबन 1 महीने के लिए खुलता है, और देश भर से बड़ी तादाद में जो पर्यटक है वो इस ट्यूलिप गार्डन का रुख करते हैं। और इस साल खुलने के बाद पहले हफ्ते में ही अब तक 1 लाख से ज़्यादा जो विजिटर्स है या पर्यटक है वो इस ट्यूलिप गार्डन का विजिट कर चुके हैं। और ये 1 लाख की जो तादाद पहले हफ्ते में है एक बड़ी तादाद मानी जाती है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ जो नज़ारा ट्यूलिप गार्डन का है
वो हसीन है, अद्भुत है। और देश के अन्य हिस्सों से यहाँ पर बड़ी तादाद में जो सैलानी है वो लगातार आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखें तो इन रंगबा रंगीन टुलिप फूलों के बीचों बीच कई लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर यादगार तस्वीरें बना रहे हैं। और मुर्तजा अगर कैमरा थोड़ा पैन करके दिखाएं तो आप देख सकते हैं ज़बरवन पहाड़ियाँ जो चारों तरफ इस टुलिप गार्डन के इर्द गिर्द मौजूद है। इसके दामन के तले जो है ये टुलिप गार्डन बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत मंजर यहाँ पर सैलानी को देखने को मिलता है। और हर साल ये करीबन 1 महीने के लिए टुलिप गार्डन खुलता है। और इस साल आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में ये कई रंग के टुलिप जो है वो खिले हैं और 68 वेराइटीज के टुलिप यहाँ पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा बूस्ट जो है जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग के लिए टुलिप का सीजन रहता है। और कश्मीर में बाहर खिलते ही सबसे पहले टुलिप के फूल खिलने लगते हैं और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर का रुख जो है देश और अन्य देशों से लोग करते हैं। तो फिलहाल कश्मीर में जिस तरह की शांति लगातार देखने को मिल रही है उसके चलते सरकार और टूरिज्म विभाग लगातार एक के बाद एक नई पहल कर रहा है और ताकि कश्मीर घाटी में जो है यहाँ पर्यटन को एक बढ़ावा मिले और दूसरी तरफ देश के अन्य हिस्सों से लोग लगातार यहाँ आते रहे और अपने जो अहम पल है वो इसी तरह के गार्डन्स और कश्मीर की वादियों में वो जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं विजिट के लिए जब आते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए शांति जो है वो बहुत ही अहम है। और उसके चलते एक के बाद एक बड़े ठोस कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। अगली मुख्य खबर हरियाणा से है। NHAI और हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने टोल टैक्स की दरों को बढ़ाते हुए बुधवार को नई टोल दरें जारी कर दी हैं। 31 मार्च रात 12 बजे से टोल की दरों में 5 से 8% की बढ़ोतरी के साथ नए टोल टैक्स मूल्यों को लागू किया जाएगा। इससे अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर सफर करना और महंगा हो जाएगा। आपको बता दें पहले इस हाईवे पर प्राइवेट व्हीकल का चार्ज 115 रुपये था, अब इसका रेट बढ़ाकर 125 कर दिया गया है। अधिकारी के मुताबिक प्राइवेट गाड़ियों की दर में 8% की बढ़ोतरी की गई है। NHAI गाइडलाइन के अनुसार 20 किलोमीटर के रेडियस पास में भी अब 5% की वृद्धि की गई है। गुरुग्राम सोहना एक्सप्रेसवे पर टोल रेट में बढ़ोतरी हो रही है, कितनी ये बढ़ोतरी हो रही है और कब से ये लागू होगी? तो नमस्कार सर, ये गुड़गांव सोहना हाईवे प्रोजेक्ट है। 31 मार्च रात 12 बजे से NHAI के द्वारा निर्धारित रिवाइज रेट लागू कर दिए जाएंगे, जो कि करीब 5 से 8% तक की बढ़ोतरी हुई है। जिसमें जो प्राइवेट व्हीकल हैं जो पहले 115 रुपये का चार्ज था उनको बढ़ा के अब 125 रुपये कर दिया गया, लगभग 8%। इसी तरह बाकी की जो भी गाड़ियां हैं कमर्शियल व्हीकल, सब पे 5% से लेके 8% का दर लागू किया गया है। और जो 20 किलोमीटर का रेडियस का मंथली पास था NHAI के गाइडलाइन के अनुसार, अब उसको बढ़ा के 330 कर दिया गया है। 5% का उसमें भी इजाफा किया NHAI के अनुसार। पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार को CM केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना की तैयारी को लेकर केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। हमारी इसको लेके पूरी तैयारी है। वैसे तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम अभी केसेस हैं और कोई सीवियरिटी भी नहीं है। लेकिन तैयारियों को देखते हुए हमारी 7,986 बेड्स हमारे अभी तैयार हैं कोरोना के लिए। इसमें ऑक्सीजन वाले बेड्स भी हैं, इसमें वेंटिलेटर बेड्स भी हैं, इसमें ICU भी हैं। 7,986 बेड्स हैं जिसमें से 66 बेड्स केवल ऑक्यूपाइड हैं। 66 RT-PCR के टेस्ट करने की हमारे पास सफिशिएंट क्षमता है। लगभग 4,000 टेस्ट हम सरकारी लैब्स में करने के लिए हमारे पास क्षमता है और प्राइवेट लैब्स में तो 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट पर डे करने की क्षमता है। वैक्सीन भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक रहा, नेशनल एवरेज से ज़्यादा अच्छा रहा। 18+ की कैटेगरी में तो लगभग सबको वैक्सीन लग चुकी है।
और 18 से निचली उसमें आए तो फर्स्ट डोज सबको लग चुकी है, सेकेंड डोज भी 85% के लगभग लोगों को लग चुकी है। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जुड़े रहिए इवनिंग न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।